All right, so we will start with our class. Very first thing कि हमने पिछली क्लास में क्या स्टडी किया था? We studied transcription. We studied transcription and we studied post transcriptional modification. We studied post transcriptional modifications. And in this transcriptional process, we studied 3 steps. The first one is initiation, in which the RNA polymerase, DNA dependent RNA polymerase has binded on the operator region of the promoter region of the cistern, right? And the sigma factor has also joined, and then the initiation was done. Elongation was done on the structural gene part, in which nucleotides was added in the basis of complementary base pairing, right? Is that clear or not? But in the end, in the terminator region, the rho factor comes and it changes the structural structure of that DNA dependent RNA polymerase, and it get removed from the DNA strand, and hence the transcription process stops. So sigma factor was responsible for the initiation and rho factor was responsible for the termination of the transcription, and out of that transcription we have got an RNA that is now we will like us RNA को आप लोग mRNA नहीं बोलेंगे. At that moment you will call that RNA as an hnRNA. That hnRNA means heterogeneous RNA. Heterogeneous means that is a mixture of something, है ना? So we need to purify it. The very first thing we will do in a post transcriptional modification. Now the very first very important point to be remembered over here is that the post transcriptional modification happens only in eukaryotic cells. That's it. In prokaryotic cells, post transcriptional modification doesn't happen, as transcription and translation is coupled in the case of prokaryotes. समझ में आई बात? Transcription, post transcriptional modification happens only in eukaryotic cells, not in prokaryotic cells, as in prokaryotic cells transcription and translation is coupled. So this post transcriptional modification we are studying in the case of eukaryotic cells. Is that clear? The 3 modification we studied is, first is 5' end modification, that was capping and capping of 7-methyl Why? Can you please tell me? To prevent yes, 5' exonuclease activity, to prevent this nucleic acid, this RNA nucleic acid from 5' exonuclease activity, to prevent 5' exonuclease activity on hnRNA. This RNA was hnRNA, not matured mRNA. To prevent 5' exonuclease activity on hnRNA. Apart from that, to guide the RNA from nucleus to is that clear? The second modification which was done in post transcriptional modification is 3' end polyA-tail. So somewhere around 200 bases of adenine was added on the 3' end, to preserve codes or exons. Exons are the regions on the RNA which is coding. This I have taught you in the earlier class. ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था. To preserve the codes, the exons from 3' end exonuclease activity. Exonuclease, and how it is going to prevent? See, like अगर 3' end exonuclease activity अगर होती भी है तो it will remove the A's, it will remove the adenine, है ना? It will remove the adenine. So even if some adenine is being removed, this exon, that coding region of that RNA, heterogeneous RNA, will be preserved. This is why we are putting lots of A, somewhere around 200 base pairs of adenine on 3' end. This is known as polyadenylation, and the enzyme which is involved in synthesis of polyA-tail is polyadenylase. The enzyme involved is polyadenylase.
enzyme involved is polyadenylase. The third modification was removal of what are introns? These are non-coding part. These are non-coding part of the hnRNA. So these are being removed through the lariat. The introns are removed. So ultimately the matured mRNA we will be getting is 5' end capping and poly A tail. We will be having exon 1, we will be having exon 2 and we will be having exon 3. The 3 exons, like many of the exons can be there. एक से ज़्यादा कई सारे exons हो सकते हैं. मैंने यहाँ पे से 3 mention किया है. 5' end capping. This is a mature mRNA. This is a matured mRNA ready to go for translation. Ready to go for translation. Now it is ready for translation. And before ongoing to the translation, you need to understand what we have. हमने कई बार we have used this term coding, non-coding, non-coding, non-coding. What is coding? What is code? What code do these mRNAs do have? तो इस mRNA के ऊपर में कौन-कौन से codes हैं बच्चा? This code is actually genetic code. This code is actually genetic code. There was a scientist named as Marshall Nirenberg. आपने कभी नाम सुना है इनका? Marshall Nirenberg. He given this concept of genetic code. जेनेटिक कोड का कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया? मार्शल नीरेनबर्ग ने. एक्चुअली जेनेटिक कोड का जो कॉन्सेप्ट था, एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? जॉर्ज गैमाउ. George Gamow. First, the Marshall Nirenberg was the scientist who has given us the genetic codes, and the concept was given by George Gamow. George Gamow. These two names, George Gamow and Marshall Nirenberg. Apart from that, our Indian scientist, Dr. Hargobind Khurana. Dr. Hargobind Khurana. Right. So George Gamow given the concept of the genetic code is of genetic code क्या है बच्चा? आपने दो साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे देखा, जॉर्ज गैमाउ और मार्शल नीरेनबर्ग एंड डॉक्टर हरगोबिंद खुराना. एक्चुअली जॉर्ज गैमाउ जो थे ना, इन्होंने ये एक एक्चुअली मैथमेटिशियन थे, इन्होंने ही कॉन्सेप्ट थे ना. बेसिकली ही नोज की दैट हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स डू वी हैव इन टोटल? वी हैव 80 CG. We have 80 CG, right? We have 4 nucleotides and in total amino acids we have is 20. The total amino acids do we have is 20. 4 nucleotides and 20 amino acids. 9 साफी है ना? So अगर हम each amino acid को एक एक न्यूक्लियोटाइड से कोड करते हैं, so we will be able to code only 4 amino acids, right? We will be able to code only 4 amino acids or not? And if we are using one nucleotide as a code, we will be able to code only 4 nucleotides, 4 amino acids, and 16s will be remaining. And if we are putting 2 nucleotides as a code, then how many amino acids we will be able to cover? 16, है ना? 16 amino acids को cover कर पाएंगे and 4 will be still remaining. Right? Right or not? And if we are using 3 nucleotide code, then we will be able to code how many? 4 4 is 16, 4 to the power 3. Over here, 4 to the power 1, 4 to the power 2, 4 to the power 3. This will be, if we will be using one nucleotide as a code, we will be able to code only 20 amino acids, 16 will be remaining. If we are using 2 nucleotides as a code, we will be able to code 16 amino acids, 4 will be remaining. If we are using 3 nucleotides as a genetic code, then we will be able to 4 into 4 into 4, 64. In total, we will be able to code 64 amino acids in total. But do we need such genetic codes? We have only 20 amino acids. Why we are requiring 64 codons for that? Just because बच्चा, क्योंकि अब इसमें क्या है बच्चा, अगर 2 वाला करेंगे ना तो आप सिर्फ 16 कर पाओगे, 4 तो वैसे ही बच जाएगा, तो ज्यादा हो जाए, कम नहीं होना चाहिए. In this case, we are using 3 nucleotides as a genetic code. Now, in total we will be having how many codons? That will be 64 codons we will be having,
right? In total we will be having 64 codons. Out of these 64 codons, 3 will be stop codons, right? Let us first consider AUG1. AUG will be start codon, and it will also be coding methionine, and it will be coding methionine. Is that clear or not? The first codon AUG will be known as start codon, and it will be coding methionine as well, right? And we will be having 3 stop codons. What बताइए बच्चा पहला AUG, sorry, UUA, UAG and UGA. These 3 are the stop codons, right? UUA, UAG, UGA. These 3 are stop codons. These 3 are stop codons. That doesn't codes for any amino acids. That doesn't codes for any amino acids. So in total we have 64 codons. See, जॉर्ज गमाओ ने क्या किया बच्चा? जॉर्ज गमाओ ने बोला कि अगर आप जेनेटिक कोड सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का रखिएगा तो ज्यादा आप 4 न्यूक्लियोटाइड को अमीनो एसिड को कोड कर पाइएगा, 16 बच जाएंगे। अगर आप 2 का कीजिएगा तो आप सिर्फ और सिर्फ 16 अमीनो एसिड को कोड कर पाइएगा, 4 अभी भी बच जाएंगे। लेकिन अगर आप 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक जेनेटिक कोड बनाएं तो आप टोटल मिला के 64 कोडोन्स बना सकते हैं। Out of that 16 codon will be more than enough to code 20 amino acids or not. तो हम टोटल 20 amino acids कोड कर पाएंगे। So we have 64 codons. Out of that 64 codons, AUG acts as a start codon. स्टार्ट कोडोन का मतलब है बच्चा ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो यहीं से स्टार्ट होगा, AUG से ही स्टार्ट होगा। बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट कोडोन या स्टार्ट कोडोन इज नोन एज AUG. That will also be coding for methionine. The next is we have 3 stop codons as well. Yes, sir. UAA, UGA and UAG. These 3 are stop codons. That doesn't codes for any amino acids. Clear है? Now the remaining how many? हमारे पास कितना बच गया? Total 61 codons and we have 19 amino acids. अब ये तो क्लियर है बच्चा कि जरूरी मतलब ऐसा हो सकता है कि एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा जेनेटिक कोड से कोड किए जा सकते हैं। सो फिलहाल आप देखिए, अब नॉर्मली बात करते हैं। चलिए, अब मैंने आपको बताया बच्चा इन टोटल वी हैव 64 कोडोन्स। आउट ऑफ these 64 codons, AUG is the start codon. Apart from that, UAA, UAG and UGA, these are stop codons, right? And now we have 19 amino acids. अब हमारे पास 19 अमीनो एसिड्स बचे हैं और उसको कोड करने के लिए हमारे पास 64 जेनेटिक कोड्स हैं। क्या है? 64 हमारे पास जेनेटिक कोड्स हैं। आपको पता है बच्चा ये जो टोटल जो कोड्स फाइंड आउट किए गए हैं इनके लिए ही रिस्पॉन्सिबल है मार्शल नीरनबर्ग एंड डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। इंडियन ऑरिजिन के हैं डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। उन्होंने ही एक्चुअली फिर ये फाइंड आउट किया कि कौन सा वाला जेनेटिक कोड किसको कोड करेगा। जैसे यूयू कोड्स फॉर, सबसे पहला है फिनाइलएलनिन। इस तरह से ये ट्रिपल यू कोड करेगा किसको? फिनाइलएलनिन को। बात समझ में आ रही है? एनसीईआरटी बुक है आप लोगों के पास, उसमें भी डायग्राम जेनेटिक कोड का दिया हुआ है। यूयू कोड्स फॉर फिनाइलएलनिन। अब एक चीज और देखिएगा बच्चा कि यूयूसी आल्सो कोड्स फॉर फिनाइलएलनिन, कोड्स फॉर फिनाइलएलनाइन। अब बच्चा ये है जेनेटिक कोड की डीजेनरेसी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला जो पॉइंट है बच्चा कि टोटल मिलाकर के आपके पास 16 ट्रिपलेट कोडोन है। पहला चीज तो आपको जॉर्ज गमाओ ने ये प्रूफ कर दिया कि आपका कोडोन हमेशा डबलेट नहीं बल्कि ट्रिपलेट ही होगा। इसके अलावा हमारे पास स्टार्ट कोडोन स्टॉप कोडोन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट टोटल 19 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए वी हैव 61 जेनेटिक कोड्स। सो इन दैट केस बच्चा आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, उसको डीजेनरेसी बोलते हैं। डीजेनरेसी का मतलब है एक अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन 1 जेनेटिक कोड्स, है ना? तो ये कहलाएगा डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है, डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड क्या कहलाती है बच्चा? वन अमाइनो एसिड कैन बी कोडेड बाय वन अमाइनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन 1 जेनेटिक कोड। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको फिनाइलएलनिन के बारे में बता दिया गया है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, जैसे फॉर एन एग्जांपल देख लेते हैं। AGG स्टैंड फॉर आर्जिनिन। AGG कोड्स फॉर आर्जिनिन, राइट?
अब ये जो AGG कोड कर रहा है आर्जिनिन अमाइनो एसिड को, तो चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे यू बैक्टीरिया हो, चाहे आर्की बैक्टीरिया हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे डायनासोर्स हो, एवरीवेयर AGG will code for arginine only. If UUU is coding for phenylalanine in each and every case, चाहे वो बैक्टीरियाज के केस में हो, चाहे नॉन बैक्टीरियाज के केस में हो, आर्की बैक्टीरियाज के हो, या कोई भी हमें जो पुराना हमें जो मिला है फॉसिल्स, उनके केसेस में भी जो प्रोटीन होगा, दैट प्रोटीन अगर उसके अंदर फिनाइललानिन है, दैट विल आल्सो बी कोडेड बाय UUU. सो दिस इज यूनिवर्सल. हर एक स्पीसीज में, हर एक जनरा में UUU विल बी कोडिंग फॉर, चाहे बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन है, बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन है, बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन है या नहीं है ना? बाकी आपके अंदर प्रोटीन है, बैलानोग्लोसस के अंदर प्रोटीन है. व्हाट इज बैलानोग्लोसस? हेमिकोडिट्स पढ़ा आप लोगों ने, तो वो उसके अंदर प्रोटीन है. हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटीन है. तो दैट प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, एंड अमाइनो एसिड्स आर, वी हैव 20 अमाइनो एसिड्स, एक्चुअली 20 प्रोटोजेनिक अमाइनो एसिड्स. सो अगर कोई भी अमाइनो एसिड होगा बच्चा, तो अगर UUU कोड कर रहा फिनाइललानिन को ह्यूमन में, तो बैक्टीरिया के अंदर भी वही कोड करेगा. दिस इज नोन एज यूनिवर्सैलिटी ऑफ जेनेटिक कोड. तो इसीलिए पहला तो जेनेटिक कोड आपका डीजेनरेसी शो करता है, दूसरी चीज यूनिवर्सैलिटी ऑफ जेनेटिक कोड. देखिए यूनिवर्सैलिटी ऑफ जेनेटिक कोड क्या है बच्चा, कि जेनेटिक कोड हर जगह यूनिवर्सल होता है. तो आप क्या क्या पॉइंट्स लेकर के आइएगा. जेनेटिक कोड इज ऑलवेज ट्रिपलेट. जेनेटिक कोड कैन शो डीजेनरेसी. डीजेनरेसी का मतलब है a single amino acid can be coded by more than one genetic codes. Genetic code is always universal. It's unambiguous. Unambiguous का मतलब कोई इस पर शंका विचार नहीं है. If it is coding for UUU for phenylalanine, it will be coding for everywhere. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा UUU को केस में लेकर के. बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यहां तो बस यही बेसिक चीजें हैं बच्चा. तो अगर आप फीचर्स ऑफ अमाइनो एसिड को लिखने की कोशिश करें, तो सबसे पहला फीचर क्या लिखिएगा बच्चा? फीचर्स बताइए. सबसे पहला फीचर आप क्या बताएंगे? शोज डीजेनरेसी. सबसे पहला आप कीजिएगा शोज डीजेनरेसी. क्या होता है डीजेनरेसी बच्चा? यू गॉट माय पॉइंट. व्हाट इज डीजेनरेसी ऑफ अमाइनो एसिड्स? क्या होता है डीजेनरेसी ऑफ अमाइनो एसिड बच्चा? बोलिए. नहीं, अमाइनो एसिड तो एक ही है. व्हेन अ सिंगल अमाइनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन जेनेटिक कोड. व्हाट इज डीजेनरेसी बच्चा? बताइए, आप बताइए. व्हेन एन अमाइनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन वन, आई एम नॉट सेइंग टू, मोर देन वन जेनेटिक कोड्स, दिस इज डीजेनरेसी ऑफ अमाइनो एसिड. सारे में नहीं होता, कुछ में होता है. बात समझ में आ रही है? तो डीजेनरेसी को शो करता है. दूसरी चीज, दिस इज यूनिवर्सल. जेनेटिक कोड इज ऑलवेज यूनिवर्सल. एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म यूनिवर्सल? जेनेटिक कोड इज ऑलवेज यूनिवर्सल. व्हाट इज यूनिवर्सैलिटी ऑफ जेनेटिक कोड? बताइए. अगर कोई सा भी कोड हमारे उसमें अंदर कोड कर रहा है किसी भी, if UUU is coding for phenylalanine, it will be coding in either it is in the case of human, it is the case of bacteria, or any protein present on this earth. In every case UUU will be coding for phenylalanine. Apart from that, है ना, either it is, देखिए जैसे आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, from bacteria to human UUU codes for phenylalanine only, है ना. सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल हैज बीन फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन एंड सम इन प्रोटोजोआंस. लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर में है, लेकिन ये आप ध्यान मत दीजिए, वरना ये आपको कंफ्यूज करेगा. बस इतनी सी बात रख लीजिए कि जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन. एवरीवेयर दिस कोडोन इज बीइंग फॉलोड. क्लियर है या नहीं है? और इसके बाद है बच्चा, आपको पता है AUG acts as a dual function. It acts as an start codon as well as it also codes for methionine. Apart from that we have 3 stop codons, UAA, UAG and UGA. That's it. अब ये पॉइंट लिख के बताइए फटाफट से, तो कॉपी निकालिए फटाफट. राइट मी द स्पेशल पॉइंट्स ऑफ जेनेटिक कोड्स, आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स ऑफ जेनेटिक कोड, फटाफट से. और आपको पता है ये जो टोटल जो आपके पास 61 कोडोन्स हैं, these 61 कोडोन्स आर गिवन बाय 2 साइंटिस्ट, मार्शल नीरनबर्ग एंड डॉक्टर हरगोविंद खुराना. These two were both awarded with Nobel Prize. आपको पता है इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला था टू फाइंड जेनेटिक कोड्स. अब वो कहां से लाऊं मैं, वो तो डिलीट हो गई ना बच्चा.
अच्छा ये वाली, ये तो बेसिक है, इसमें क्या है, तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, यू हैव टू राइट इट योर ओन। दोनों सेम है। फिनाइल एलेनाइन, इट्स एन अमाइनो एसिड। सर अनएम्बिगुअस का मतलब अनएम्बिगुअस का मतलब है देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। दैट मीन्स इफ UUU इज कोडिंग फॉर phenylalanine in Streptococcus pneumonia, then it will be coding for then UUU will be coding for phenylalanine in human as well. Everywhere UUU will be coding, and there is no punctuation. ऐसा नहीं कि हर जेनेटिक कोड के बाद आप कॉमा लगा दीजिएगा, ऐसा नहीं है। there is no punctuations, इसमें कोई भी कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। you have just to mention the sequences। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कोडोन हो जाएगा आपका AUG, स्टार्ट कोडोन हमेशा यहीं से होगा। उसके बाद मान के चलिए UUU है, उसके बाद आप और भी बहुत सारा लिख सकते हैं, जैसे GGG है और AAC है, GGG है ना, ये ग्लाइसिन को रिप्रेजेंट करता है, UUU जो है फिनाइललाइन को कोड करता है। तो देयर इज नो कॉमा एट ऑल। यहाँ पर कहीं पर कॉमा लगा दिख रहे हैं आप, कंटिन्यू होता है ये, इसमें नहीं बीच में आप यहाँ से ऐसे ऐसे कॉमा लगा दीजिएगा, ये नहीं आप कर सकते। क्लियर है? जेनेटिक कोड समझ में आया? एंड यू हैव लिखने, यहां से मत लिखिए, यू हैव टू राइट इट डाउन, आपको लिख के बताना है लाइक व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। ये क्वेश्चन आया भी है, एग्जामिनेशन में आ भी सकता है। write us down the important features of genetic code. The first thing, genetic code is always triplet. इतना सा नहीं लिख सकते, एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। genetic code is always triplet. Genetic code, there are total 64 codons. Out of that, one AUG codes for methionine, also acts as a start codon. 3 codons are stop codon that you have to mention, and apart from that 61 codons is coding for 19 amino acids. So in this case, genetic code shows degeneracy. एक लिखेंगे पॉइंट ऑफ इसका, दैट इज कि a genetic one amino acid can be coded by more than one genetic codes. लिखिए इसको फटाफट। और क्या लिखे आप, बाकी पॉइंट्स क्या लिखा आपने? लिखा आपने जेनेटिक कोड्स के बारे में? आर यू श्योर जेनेटिक कोड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है? जॉर्ज गमाओ, उन्होंने ट्रिपलेट होने का कंक्लूजन दिया था। जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? जॉर्ज गमाओ ने दिया। हर एक जेनेटिक कोड कौन कौन से अमाइनो एसिड को कोड करता है, ये कॉन्सेप्ट मार्शल नीरनबर्ग और डॉक्टर हरगोबिंद खुराना ने दिया। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, और अब नाउ वी विल गो ऑन टू ट्रांसलेशनल प्रोसेस। अब हम जाने वाले हैं ट्रांसलेशन को समझने के लिए। जेनेटिक कोड लिख लिया ना आप लोगों ने सही अंक से? कोई कंफ्यूजन नहीं है जेनेटिक कोड में? आपको कंफ्यूजन है जेनेटिक कोड में? क्या कंफ्यूजन है पूछिए। समझ गया? हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ATCG न्यूक्लियोटाइड्स होता है कि नहीं होता है? उसी का सीक्वेंस होता है डीएनए के अंदर में, और उसी डीएनए से हम ट्रांसक्राइब करते हैं तो mRNA बनता है। बस डीएनए और आरएनए में फर्क क्या है कि टी की जगह पर यू होगा। ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो हमारे पास एक आरएनए मिला। आरएनए में राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स नहीं होते हैं, अराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स मिला है बच्चा, है ना, तो इसमें सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, इनके जो राइबोन्यूक्लियोटाइड के जो सीक्वेंसेस हैं, यही एक्चुअली जेनेटिक कोड की तरह काम करते हैं। मैंने आपको बताया था, आप शायद पिछली क्लास में नहीं थे, उसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं। कोडिंग रीजन्स आर नोन एज एक्सॉन्स, नॉन कोडिंग रीजन्स आर नोन एज इंट्रॉन्स। सो जो इंट्रॉन्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है और सिर्फ एक्सॉन बचता है। एक मैच्योर एमआरएनए में एक्सॉन होता है, 5' पर कैपिंग होती है, 3' पर पॉली टेलिंग होती है। ये एक मैच्योर एमआरएनए होता है। अब हमने बताया आपको इसके ऊपर में एक्सॉन होता है। एक्सॉन इज कोडिंग। व्हाट डज इट कोड फॉर? इट हैज एक्चुअली जेनेटिक कोड्स. It has actually genetic codes. And now the question arises ki why we are considering genetic code as a triplet only? Because this concept was given by George Gamow. George Gamow knows ki that in total we have 20 amino acids and we have 4 nucleotides. And in order to code this 20 amino acids, we need a codon of triplet only. So that we will be having 64 codons, and to code that 20 amino acids, we will be having 64 codons. Out of that, one codon will act as dual factors. That will act as a start codon as well as for the methionine as well, and the remaining 3 will be acting as a stop codon that will not code for any kind of amino acid. But बाकी remaining 61 codons will code for 19 amino acids. 61 codons will be coding 19 amino acids. तो यहां से ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा कि that one amino acid may be coded by more than one genetic codes.
This is known as degeneracy of the amino acids, genetic code. What is degeneracy of genetic code? One amino acid can be coded by more than one genetic codes. This is degeneracy of genetic code. इंग्लिश में नहीं समझते हैं आप लोग, मुझे समझ में आ गया. इंग्लिश में नहीं उतने गहराई तक अंदर तक बात नहीं पहुंचती है. आई एम 100% श्योर. हिंदी में बात करें तो आपको समझ में आता है, इंग्लिश में जरा सा जाएं तो आपके बहक, ठीक है समझ में आ रहा है, नो यू अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल, बट फिर भी जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो कम हो जाता है. बट वी हैव टू मेक श्योर कि हमें दोनों चीज करना है. बात समझ में आ रही है? जेनेटिक कोड इज डन. नाउ वी विल गो ऑन टू द ट्रांसलेशनल प्रोसेस. अब तो जेनेटिक कोड में कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज ट्रांसलेशन. द नेक्स्ट प्रोसेस इज ट्रांसलेशन, द लास्ट पार्ट ऑफ सेंट्रल डॉगमा. ट्रांसलेशन की सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बच्चा, वेयर इज द साइट ऑफ ट्रांसलेशन, कहां होता है ट्रांसलेशन? इट हैपेंस टू बी इन साइटोप्लाज्म. इट हैपेंस टू बी इन साइटोप्लाज्म, राइट. अब इसमें ट्रांसलेशन को करने के लिए व्हाट डू यू नीड एक्चुअली, व्हाट क्या क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है, यू नीड अ मैच्योर एमआरएनए. You need a mature mRNA which will be having 5' capping, 3' poly A tail and only exon in their middle part. Is that clear? Clear or not? Yes, sir. है ना clear? The first thing is a mature mRNA. Next thing what we require is ribosomes. We require ribosomes. And ribosomes are composed of two things. What two things ribosomes are composed of? Smaller unit. Small RNA? नहीं, smaller unit उसकी. नहीं, it is composed of. I'm saying I'm not constituted of. That means I'm not saying कि what are the part of. I'm saying what ribosome is made up of. बना होता है बच्चा? और सिर्फ प्रोटीन से बनता है राइबोसोम्स. और आरआरएनए कहां गया? इट इज कंपोज्ड ऑफ आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड सम प्रोटीन्स, राइट. So ribosome is composed of rRNA. We have mRNA, we have rRNA. Now the third thing we required is tRNA. Third one is transfer RNA. Now the RNA we require is amino acylated or charge transfer RNA. We require amino acylated, or we can say charged transfer RNA we require. Charged tRNA we require. So these are the three things we require. We require mRNA, we require ribosome. That ribosome is having rRNA and some proteins. Apart from that, we require tRNA. These are the three requirements without which we cannot go on for translation. For translation, we all require all the three types of RNAs: mRNA, rRNA and tRNA. Apart from that, we will be requiring amino acids, right? Amino acids that will be attached on tRNA, that I'll teach you. What is amino acylation or what is charging of tRNA? Clear hai? And we need some amino acids, right? These are the requirements for transfer RNA. The very first thing, mRNA is very clear to you. What is mRNA? You are very much aware of this mRNA. है ना clear आपको mRNA? What is this ribosome? You are very clear about rRNA and protein. rRNA are the longest, the most complicated RNA and some proteins into that. Is it clear or not? And we have some transfer RNA. Now this transfer RNA is not simple transfer RNA. It is actually amino acylated, or you can say it is charged transfer RNA. So अभी actually charged transfer RNA होता क्या है आपको पता है बच्चा? ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर पहले आप ध्यान से देखिएगा. इसको क्लोवर लीफ मॉडल बोलते हैं. ठीक है, यह है डी लूप, यह है टी लूप, और यह है आपका एंटी कोडोन लूप. दिस इज CAA लास्ट, एंड ये है जो बच्चा 3' टर्मिनल एंड होता है, ये ट्रांसफर आरएनए. इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज अ वेरिएबल लूप, दिस इज वेरिएबल लूप. इज इट क्लियर? This is a structure of
cloverleaf model of transfer RNA. We have an anticodon over here. 3 ही होगा इसके अंदर में, मैंने 4 बना दिया, 3 ही होगा. तो एंटीकोडोन लूप है यहाँ पर, डी लूप, टी लूप एंड एंटीकोडोन लूप. क्लियर है कि नहीं है बच्चा? नाउ व्हाट इज चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए? अब हम इस mRNA को टी आरएनए को हम चार्ज टी आरएनए कैसे बोलेंगे बच्चा? इसको करने के लिए बच्चा एक्चुअली एक प्रोसेस होता है, इसको अमाइनो एसाइलेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए बोला जाता है. अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टी आरएनए. और ऐसा करने में एक एंजाइम हेल्प करता है, इसका नाम अमाइनो एसाइल ट्रांसफरेज है. क्या है इनका नाम? है अमाइनो एसाइल ट्रांसफेरेज. क्या है? अमाइनो एसाइल ट्रांसफेरेज. अब देखिए इस केस में क्या होता है अच्छा, मैं एक टीआरएनए को एक सिंपल सा टीआरएनए बना के दिखाऊंगा आपको. एक एंजाइम होता है अच्छा, इसका नाम है अमाइनो एसाइल ट्रांसफेरेज. ये आप इसके पास 2 एक्टिव साइट्स हैं. क्या है? दिस इज एन एंजाइम नोन एज अमाइनो एसाइल ट्रांसफेरेज एंड एवरी एंजाइम हैज एन, व्हाट इज एंजाइम बच्चा? एंजाइम इज हैविंग एक्टिव साइट्स. एक्टिव साइट्स ऑन द प्लेस वेयर इट अटैचेस विद द सबस्ट्रेट. यही वो जगह होती है जहां से वो अपने सबस्ट्रेट से बाइंड करता है. द सबस्ट्रेट डू वी हैव इज टीआरएनए. द वन इज टीआरएनए. I'm showing a very simple form of tRNA and some amino acids. Consider this as an amino acids. So this enzyme will attach, this is amino acyl transferase. ये actually amino acyl transferase है. और ये जो amino acyl transferase enzyme है बच्चा, ये actually इस tRNA के इस पोजीशन पर, जैसे ध्यान दीजिएगा, इस tRNA के है ना, CCA वाला जो था ना, इस A वाले एंड पर यहां पर एक अमाइनो एसिड को ऐड कर देगा. तो ये जो अब जो अमाइनो, ये जो आपका ट्रांसफर आरएनए बनेगा, इसको बोलेंगे आप चार्ज ट्रांसफर आरएनए. क्या बोलेंगे? चार्ज टीआरएनए बोलेंगे. बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई? सो एंजाइम है बच्चा, ये अमाइनो एसिड को ये इस टीआरएनए के 3' एंड पर जो लास्ट में जो न्यूक्लियोटाइड है एडेनिन, उसके साथ जोड़ देता है. दिस इज चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए. आई बात समझ में नहीं आई? सो अगर हम यहां पर अमाइनो एसिड्स में देखें तो अगर मान के चलिए यहां पर अमाइनो एसिड में फिनाइल एलेनिन है, अगर मान के चलिए फिनाइल एलेनाइन है, फिनाइल एलेनिन को कोड करने के लिए यू होता है. सो दिस इज एन एंटीकोडोन लूप. दिस इज एन एंटीकोडोन लूप. तो इफ इट इज फिनाइल एलेनिन, द कोडोन इज यू. व्हाट विल बी द एंटीकोडोन साइट? व्हाट विल बी द एंटीकोडोन सीक्वेंस? अगर यू है, यू का क्या होगा? ए होगा. तो दिस इज एन एंटीकोडोन लूप एंड एन अमाइनो एसिड अटैच एट 3' एंड ए, लास्ट में जो न्यूक्लियोटाइड होता है ए, उसके साथ अटैच होता है. दिस इज नोन एज चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए एंड दिस इज अ चार्ज ट्रांसफर आरएनए. बात समझ आई है सर के ऊपर से क्या? सो वी नीड डिफरेंट थिंग्स. वी नीड mRNA, we need ribosomes, we need charge transfer RNA. Is that clear or not? And how do we charge the transfer RNA? By adding amino acid on its 3' end. The last nucleotide on its 3' end is A. We have to attach amino acid on that A. And this is done by an enzyme known as amino acyl transferase. This question has been asked. So this is charging of transfer RNA. Adding of amino acid at 3' end. ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी. आ गई बात समझ में? चार्ज टीआरएनए एंटीकोडोन लूप ए है वो. अगर यू इज कोडिंग फॉर फिनाइल. अगर यहां पर बच्चा मान के चलिए, अगर यहां पर वैलिन होता तो क्या होता? वैलिन का जो कोड है बच्चा, मान के चलिए वो GUC है. GUC है, GUG भी है, GUA भी है, GUC भी है, GUU भी है ना. तो जिस हिसाब से होगा. तो एक कॉन्सेप्ट और आपको बताता हूं. देखिए, अगर मैं आपको एक बात बताऊं जब कि अगर यहां वैलिन होता, अगर मान के चलिए इस फिनाइल एलेनिन की जगह पर मान के चलिए वैलिन होता, ठीक है, और वैलिन को कोड करने के लिए आपके पास डिफरेंट कोडोन्स होते हैं. यहीं पर डीजेनरेसी का केस आता है. सो वैलिन को कोड करने के लिए GUU, GUA, GUC और GUG, ये चारों ही कोड करेंगे किसको? वैलिन को. इज दैट क्लियर और नॉट? सो यहां पर एंटीकोडोन लूप में क्या होगा बच्चा? यहां पर G है तो C तो जरूर होगा, है ना. G है तो C होगा और U है तो A होगा.
अब यहां पर तीसरा न्यूक्लियोटाइड अगर चेंज भी हो जाए, तीसरा न्यूक्लियोटाइड अगर म्यूटेट भी हो जाए, तब भी ये वैलिन को ही कोड करेगा। जैसे मान के चलिए यहां पर पहले ए था, यहां पर पहले ए था, CAA था, नहीं एक काम करते हैं, रुक जाइए, ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, बातें मत कीजिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। आप बात करेंगे ना खुद समझेंगे ना किसी पूरे क्लास में किसी को समझने देंगे। तो डोंट बी एन स्पीड ब्रेकर टू द स्टूडेंट्स। इफ यू आर नॉट ट्राइंग टू कॉम्पीट इट, प्लीज डोंट स्टॉप अदर्स टू कॉम्पीट ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चा। यहां पर अगर ये देखिए, इसमें देखिए आप ये नोटिस कीजिए, ये दो न्यूक्लियोटाइड सबका कॉमन है, एक वेरी कर रहा है सिर्फ। अगर इन केस में अगर मान के चलिए बच्चा कि आपके डीएनए में एक ही म्यूटेशन हो जाता है, सिंपल म्यूटेशन हो जाता है, और यहां पर फॉर एन एग्जांपल मान के चलिए कि अगर आपके डीएनए की बात करें हम लोग, तो डीएनए में क्या होगा, फॉर एन एग्जांपल अगर GUU है ना, तो इसका जो डीएनए वाला पोर्शन होगा वो कैसा होगा, CU की जगह पर क्या होगा, A होगा, CAA होगा। बात समझ में आ रही है? अब मान के चलिए यहां A की जगह पर अब GUU है बच्चा, नाउ दिस GUU कोड्स फॉर वैलिन, राइट। अगर इस A में म्यूटेशन हो गया, यहां पर A में म्यूटेशन हो गया, मान के चलिए म्यूटेशन की A की जगह पर T आ गया, A की जगह पर T आ जाएगा, तो अब यहां पर आपके जेनेटिक कोड में T की U की जगह A हो जाएगा। नाउ GUA ऑल्सो कोड्स फॉर वैलिन। दिस प्रिवेंट्स एक्चुअली म्यूटेशन होने के बावजूद भी वी आर नॉट चेंजिंग दी अमाइनो एसिड्स। बात समझ में आ रही है बच्चा आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज समझने की, फर्स्ट टू ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू कोड एन अमाइनो एसिड। ये बात समझ में आई है? अगर यहां पर मान के चलिए एक म्यूटेशन हो भी गया, एक बार मान के चलिए T की जगह पर यहां पर कोई और म्यूटेशन हो गया, मान के चलिए यहां पर C आ गया, तो C आ गया तो यहां पर क्या हो जाएगा, C की जगह पर यहां पर G लगा दीजिएगा, तो GUG विल आल्सो बी कोडिंग फॉर वैलिन ओनली। अमाइनो एसिड चेंज। सर लेकिन जैसे सिकल सेल एनीमिया में GAG कोड करता था हमारा ग्लूटामिक एसिड, हाँ, उसमें बीच वाला वो चेंज बताओ। तो देखो GAG किसको कोड कर रहा है, ग्लूटामिक एसिड को। अब ये GUG किसको कोड करेगा, यहां पर बात कीजिए, पहले इस वाले में सिर्फ बदलाव नहीं हुआ, बीच वाले में बदलाव हो गया। हमने आपको क्या बताया, लास्ट वाले की बात कर रहे हैं, उसमें बदलाव हो गया तो भी अमाइनो एसिड का सीक्वेंस, अमाइनो एसिड का जो एक्चुअल है वो नहीं बदलेगा। बात समझ में आई है? क्लियर है या नहीं है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, इसका कोई पार्टिकुलरली नेम होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जो मेन अमाइनो एसिड को जो कोड करने वाले ना, फर्स्ट टू ही रोल प्ले करते हैं। आखिर में G डाल दो, C डाल दो, A डाल दो, U डाल दो, कुछ भी डाल दो, आएगा वो क्या, बेसिकली कौन मेन रिस्पॉन्सिबल है, ये GU मेन रिस्पॉन्सिबल है। GU इज फिक्स्ड, राइट। अब इसमें से कोई भी न्यूक्लियोटाइड डाल दो, सारे के सारे वैलिन को ही कोड करेंगे। बात समझ आ रही है? एक और एग्जांपल है, जैसे कि मैं अगर एग्जाम बताता हूं, UC, अगर आप UC डाल दीजिए, अब इसमें A डाल दीजिए, UCC डाल दीजिए, UCU डाल दीजिए, UCG डाल दीजिए, देखिए UC कॉमन है, ये सेरीन के लिए होता है ना, तो A लगा दीजिए, C लगा दीजिए, U लगा दीजिए, G लगा दीजिए, हर जगह कंडीशन में सेरीन ही को ही कोड करेगा। अब यहां पर ये वाला केस आ गया, नाउ अगेन वी हैव डीजेनरेसी आल्सो। अब ये डिफरेंट कोडोन्स हो गए टू कोड अ सिंगल अमाइनो एसिड, डिफरेंट कोड्स हो गए टू कोड अ सिंगल अमाइनो एसिड वैलिन, दिस इज डीजेनरेसी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चा, फर्स्ट टू न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, जो कोडोन के, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रादर देन के तीसरा वाला। बात समझ में आ रही है? ये क्लियर है कि नहीं बच्चा? GUC फिक्स है। अब अगर मान के चलिए म्यूटेशन भी हो जाए, A डाल दीजिए, C डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, वो करेगा कोड सेरीन को ही। क्लियर है? क्या कंफ्यूजन है बताइए? आपको समझ आया? आप सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं आया, प्लीज मुझे अपडेट कीजिए। आपको मैंने बताया कि फॉर ट्रांसलेशन हैपेंस टू बी इन साइटोप्लाज्म। ट्रांसलेशन न्यूक्लियस में नहीं होता, ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होता है। ट्रांसलेशन कहां होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। एंड फॉर ट्रांसलेशन वी रिक्वायर 3 बेसिक थिंग्स। फर्स्ट वन इज mRNA, mature mRNA have 3 main important things. First is 5' end capping, 3' end poly A tailing, and introns getting removed. And next, what we require? We need ribosomes. अभी आपको पता चलेगा बच्चा कि ट्रांसलेशन में कैसे 23S rRNA acts as a ribozyme. ये क्वेश्चन पूछा गया है। Ribozymes are the enzyme. When nucleic acid acts as an enzyme, that is known as ribozyme. जब आप ट्रांसलेशन प्रोसेस में आप देखेंगे बच्चा, है ना, अभी मैं आपको बताऊंगा कि पेप्टाइड वाले साइड पर पेप्टाइड सिंथेसिस के फॉर्मेशन को कैटालाइज करते हैं राइबोजाइम, दैट इज 23S RNA एक्टिंग एज एन एंजाइम। क्लियर?
Next, we have a charge transfer RNA that is being done by amino acylation या charging of transfer RNA done by an enzyme known as amino acyl transferase, in which 3' end of that tRNA amino acid is being attached. And what about this anticodon loop? If it is glycine, GUG codes for glycine, then the anticodon will be having, एंटीकोडोन में क्या होगा? अगर 3' एंड पर वैलिन अटैच्ड है तो एंटीकोडोन का सीक्वेंस क्या होगा? यू की जगह हाँ CAC होगा. बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यही समझाना चाह रहा हूँ. अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग ट्रांसलेशन. वी आर रेडी फॉर ट्रांसलेशन, बट वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे. क्लियर है? अब मुझे एक बार आपका बुक देखने दीजिए. म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड. अब इंपॉर्टेंट ये है बच्चा कि हाउ म्यूटेशन एक्चुअली हैपेंस. जैसे कि अभी आपने बात किया बच्चा सिकल सेल एनीमिया का, उसमें GAG की जगह पर GUG हो गया. कहां पर चेंज हुआ बच्चा? सेकंड वाले जेनेटिक कोड पर चेंज हो गया, तो उसने अमाइनो एसिड ही बदल दिया. अगर तीसरे वाले में बदला होता, अगर मान के चलिए कि 7th अमाइनो एसिड में ना 7th जेनेटिक कोड में हुआ था ना ये चेंजेस. सिकल सेल एनीमिया तो पढ़ा ना आप लोगों ने. सिकल सेल एनीमिया में क्या मेंशन है? 6th पोजीशन या 5th पोजीशन पर? 6th पोजीशन पर. ठीक, उस पोजीशन पर अगर उसके, देखिए बच्चा, अगर उस जेनेटिक कोड में चेंजेस हुआ, अगर उसकी सेकंड वाले न्यूक्लियोटाइड में ना होकर तीसरे वाले न्यूक्लियोटाइड में चेंज हुआ होता, तो डू यू थिंक कि उसको सिकल सेल एनीमिया हुआ था? जैसे मान के चलिए GUG की जगह पर GUA आ जाता, GUG की जगह पर GUA आ जाता, तब भी तो वो वैलिन को ही कोड करता. लेकिन GAG हो गया, कहां पर बदल गया? UA से बदल गया. इन दैट केस अब GUG की जगह GAG हो गया. अब GAG क्या है बच्चा? ग्लूटामिक एसिड. चेक करने दीजिए, एक सेकंड चाहिए. ग्लूटामिक एसिड, GAG ग्लूटामिक एसिड है बच्चा. तो GUG की जगह पर GAG आ गया, है ना. अब ग्लूटामिक एसिड तो बच्चा एक बेसिकली ग्लूटामिक एसिड तो अच्छा है, ग्लूटामिक एसिड इज अ वाटर लविंग वन. लेकिन ये जो ग्लाइसिन है बच्चा, सॉरी वैलिन जो है, ये वैलिन हाइड्रोफोबिक होता है, पानी से डरता है. बात समझ आई या नहीं आई? जेनेटिक कोड समझ आया? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन समझ में आया? पक्की बात या सर के ऊपर से गया? देखते हैं तो क्या हो गया. Which of the following components is not directly involved in the process of translation listed in the word contact? Are you sure? Directly contact. Which of the following components is not directly involved in the process of translation listed in the provided context? हाँ तो D ही होगा ना. D will be the correct answer. क्या बच्चा? ठीक है आप लोग, ठीक है. किसी ने आप लोग ये टीम ने C बोल दिया, आप लोग ये टीम ने D बोल दिया, और इन्होंने भी D बोल दिया. The process of translation primarily occurs in the cellular component. कहाँ पर होता है? ठीक है. What is the primary function of transfer RNA during translation? क्या करता है basically transfer RNA? What is the main function of the transfer RNA over here? Carrying genetic information from DNA to the ribosome, forming the structural component of the ribosome, transport specific amino acid to the ribosome, है ना, catalysis. बताइए क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर बताइए. बताइए क्या होगा? आप बताइए, आप बताइए ना. हाँ तो आप काफी पहले से बताइए इसमें क्या होगा. तो बहुत आसान सा है. सी, बट इसका आंसर तो डी होना चाहिए. टीआरएनए, आरएनए नहीं, टीआरएनए. सी विल बी द करेक्ट आंसर. कोई बात नहीं. The diagram of the transfer RNA shows the several loops which are responsible for recognizing the binding of the codon. किससे responsible होगा?
अरे अरे इसका तो दिया ही नहीं हमने. the genetic code is described as degenerate. What does this mean? More than one. बताइए चल गया आंसर. सर आपको जिसका करना था रिपीट वो आपने करा नहीं. ठीक है. Which of the following describes the charge transfer RNA? B. ठीक है, लीजिए रिवील कर दी. बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे.